नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एक बार फिर बढ़ेगी आपकी ईएमआई। आरबीआई ने लगातार ब्याज दरें बढ़ाई, रेपो रेट में किया 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा। आरबीआई के मुताबिक महंगाई अभी भी सबसे बड़ी चिंता, हाल फिलहाल किसी बड़ी राहत की उम्मीद नहीं। क्रेडिट पॉलिसी के बाद सुस्त पड़ा बाजार, सेंसेक्स 216 तो निफ्टी 82 पॉइंट गिरकर बंद। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत, खाते में आई 134 सीटें। बीजेपी 103 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस के हिस्से में आई सिर्फ 9 सीटें। आज से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र, सरकार करेगी 16 नए बिल पास कराने की कोशिश। प्रधानमंत्री बोले, अहम फैसलों के लिए जाना जाएगा ये सत्र। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में जोरदार रहे राउंड ऑफ 16 के अंतिम मुकाबले। मोरक्को ने स्पेन को हराकर किया बड़ा उलटफेर, तो पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को 6-1 से रौंदा। 9 दिसंबर में क्वार्टर फाइनल मुकाबला, 9 दिसंबर से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की। महंगाई के इस दौर में आपके लोन की ईएमआई और बढ़ने वाली है। आज आई क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.25% कर दिया है। साथ ही एसडीएफ और एमएसएफ रेट में भी 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। आरबीआई ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक पर चिंता जताई है और FY23 का ग्रोथ अनुमान 7% से घटाकर अब 6.8% कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक रिटेल महंगाई अब भी अनुमान से ज्यादा है, लेकिन FY23 में रिटेल महंगाई का अनुमान 6.7% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई ने विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का रुख बरकरार रखा है। साथ ही ये भी कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। We will keep an Arjuna's eye on inflation, and this is something which I had explained in one of my earlier speeches, and we will be ready to act. Our actions will be nimble. The course of our future policy will duly consider new data releases and the evolving outlook of the economy, as well as the effect of our past actions. In meeting the challenges thrust upon us by a hostile global environment, we should not lose sight of the task of improving the long-term potential of our country. Green transition, reconfiguration of supply chains and logistics, production-linked incentive schemes, digital banking and financial services, and innovative technologies offer immense opportunities for the Indian economy. Now, over the last few days, and as usual at the time of every monetary policy, pre or post monetary policy discussion, there is a lot of discussion in the media, in the among various informed circles, whether the RBI statement is hawkish or dovish or otherwise. Now, I leave it to you to interpret whether it is a hawkish statement or a dovish statement, or it is something else. But so far as we are concerned, I would like to state that the growth continues to maintain resilience. 6.8% in the current context, when the rest of the world there is acute slowdown of growth, 6.8% is a very strong growth impulse. That is something, the first point. Second thing is that the problem of inflation is not over, so therefore the battle against inflation has to continue. होम लोन देने वाले में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ के मिस्त्री का कहना है कि रेट हाइक हाउसिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात नहीं, क्योंकि भारत में होम लोन पर 9-9.5% तक ब्याज सामान्य बात है और अभी भी हम इससे अब दूर हैं। We are not close to 9 at the moment.
we still have some distance to go, and including this policy, and even if we do a 20-25 basis points hike in rates thereafter, I don't think we'll get to 9. But historically, interest rates for housing in India have been 9.5% many times over the last 7 or 8 years. If you take 2013, 2017, and various other points of time, housing loan rates in India have been 9.5%, and at 9.5%, the growth has still sustained and has remained strong. When it gets into double digit, then it becomes a little bit of a psychological kind of an issue. But I don't believe we are going to get anywhere close to that. और आरबीआई पॉलिसी का आपकी ईएमआई पर क्या पड़ेगा असर? घर, कार, टीवी, फ्रिज का लोन अब कैसे बदलेंगे, ये जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम का कहना है कि आरबीआई गवर्नर आगे महंगाई को लेकर थोड़े असमंजस में दिखे। कोर महंगाई सबसे बड़ी चिंता की बात है। डेटा जो उन्होंने पेश किया ना बहुत पॉजिटिव था अबाउट द करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, मगर उनको फ्यूचर की अनसर्टेनिटी इतनी उनके मन में थी, तो उनकी स्पीच में एक कॉन्फिडेंस नहीं था। वो एक हेड्स कर रहे थे अपना कि फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, मैं नेदर हॉकिश नॉट डॉविश, मैं सिचुएशन के बेसिस पे करूंगा। तो मार्केट में ये डर आ गया कि ये डेटा जो आ रहा है और इनकी बात में जो डिस्कनेक्ट है, तो शायद और रेट हाइक्स आएंगी फ्यूचर में ग्रोथ को डाउन करने के लिए। और इन्फ्लेशन का उन्होंने बताया कि फूड का सोइंग अच्छा है, ऑयल की दाम गिर रही है, मगर वो दोनों को हटा के कोर इन्फ्लेशन घट नहीं रही है, इसके ऊपर उन्होंने कंसर्न पेश किया। तो मेरी उनकी स्पीच में ना बहुत एक क्या मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा, मगर एक क्लैरिटी अबाउट द फ्यूचर वो नहीं दे पा रहे थे। और मार्केट ऑलवेज फ्यूचर आउटलुक को देखती है, और जब वो नहीं मिलती है मार्केट को, तब सभी डेटा डिपेंडेंट है, तो मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। तो वहीं सीआरआई एसआईएल के सीनियर डायरेक्टर चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी के मुताबिक फिलहाल आरबीआई के लिए रेट हाइक को रोकना मुश्किल है, क्योंकि महंगाई ने दुनिया भर में परेशानी पैदा कर रखी है। देखिए, अभी तक जो हमने कुछ पिछले साल में देखा, इन्फ्लेशन ने एक तरह से जो सरप्राइज है वो एक नेगेटिव सरप्राइज ही दिया है। वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दुनिया भर में रहा है। और अभी भी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका जो अगर आप उसका मतलब ये है कि ग्लोबल ग्रोथ अगर नीचे भी आती है तो कमोडिटी और क्रूड प्राइसेस शायद उतना नीचे आके सस्टेन ना कर पाए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स उसको ऊपर रखेगी। क्योंकि इतने मूविंग पार्ट्स हैं, तो कोई कमिटमेंट आई थिंक या कोई प्रोजेक्शन इस समय करना बहुत मुश्किल है। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, वो बहुत फोरकास्ट के जो अराउंड होता है वो काफी बड़ा है, और फोरकास्ट की रिलायबिलिटी भी बहुत कम है। तो इस सिचुएशन में वो मार्केट को कोई सिग्नल नहीं देना चाहते हैं कि हम रेट हाइक के जो साइकिल है उसके एंड में पहुंच गए हैं। और वो यही बार बार दोहरा रहे हैं कि महंगाई की दर जो है वो हमारा प्राइम कंसर्न है। अगर इन महंगाई की दर नीचे आती है तो रुख बदल लेंगे, पर अभी फिलहाल वो कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं कि हमारा जो साइकिल है वो पीक कर रहा है। आई थिंक इस बात को वो एम्फसाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से एक्सपेक्टेशन बन रही थी कि शायद हम 6.25 में पीक आउट कर जाएंगे। तो उसको क्वैश करने के लिए और दूसरा ये है कि महंगाई उनका अभी भी प्राइम फोकस है। आई थिंक ये री एम्फसाइज तो ताकि मार्केट एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। और अब बात करते हैं मार्केट की। आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में गिरावट दिखी। सेंसेक्स 216 पॉइंट गिरकर 62,411 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 18,600 के नीचे पहुंच गया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। मार्केट का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, सबसे पहले तो बताइए मार्केट के आज के हाईलाइट्स। तो देखिए, आज की अगर हम बाजार की बात करें तो आरबीआई पॉलिसी और जो गवर्नर की स्पीच थी उसके बाद बाजार में आपको प्रॉफिट बुकिंग और तेजी से गिरावट दिखी। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में हमारे जो मिड कैप्स थे और मार्केट थी वो ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन आरबीआई पॉलिसी के बाद और जो महंगाई पे जो ज़्यादा फोकस था आरबीआई पॉलिसी का, उसकी वजह से बाजार को लगा कि शायद अब ब्याज दरों का जो बढ़ना है वो यहाँ से थोड़ा बहुत इम्प्रूव ही हो सकता है, यहाँ से ज़्यादा बढ़ी सकते हैं दरें, और कहीं ना कहीं पॉज की एक्सपेक्टेशन थी बाजार की, वो नहीं हो पाया। इसके अलावा अगर हम देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में शुरुआत मजबूत रही, लेकिन एंड ऑफ द डे यहाँ भी लगभग आधे % की गिरावट के साथ ही आपको मिड एंड स्मॉल कैप कारोबार करते हुए दिखाई दिए।
जी हाँ, तो सेक्टर्स के जो एक्शन रहे वो फिर किस तरीके से उसका रिएक्शन दिखा, कहाँ सुस्ती रही, कहाँ पे थोड़ी तेजी दिखी? तो देखिए, अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो एफएमसीजी स्टॉक्स में नया जोश था। इनफैक्ट आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जहां ग्रामीण इलाकों में कंजम्पशन पिकअप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद आपको दिखेगा कि एफएमसीजी शेयर्स खास करके एचयूएल एशियन पेंट्स में लगभग 2% की तेजी थी, बीपीसीएल में 2% की तेजी थी और एल&टी यहां आपको रिकॉर्ड हाई लगते हुए दिखाई दिए, स्टॉक में लगभग 1.5% की तेजी थी। इसके अलावा आपको दिखेगा कि इंश्योरेंस कंपनीज पर थोड़ा बहुत दबाव था। एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी और टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स में लगभग 1.5 से 2% के आसपास की मंदी थी। मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, खास करके ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पीएससी नई 52 वीक हाई पे था, ये स्टॉक में 3% की तेजी थी और लिंडे इंडिया यहां भी आपको लगभग अच्छे वॉल्यूम के साथ 3% की तेजी दिखी। लूजिंग एंड पे रियल एस्टेट शेयर्स में आज बिकवाली थी। शोभा डेवलपर्स, ओबेरॉय रियल्टी, जुबलेंट फूडवर्क्स जैसे स्टॉक्स में आपको 3% की गिरावट दिखी और अगर हम वायदे बाजार में बात करें तो नवीन फ्लोरिन में भी आपको लगभग अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 3% की गिरावट दिखी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतीन। तो ये तो रहा मार्केट का हाल और अब बात चुनावी दंगल की। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। दिल्ली विधानसभा के बाद अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया। नतीजों में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। 250 में से आम आदमी पार्टी के पास अब 134 सीटों पर जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने, जबकि बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब है। कांग्रेस को 9 ही सीटें मिल पाई हैं, जबकि 3 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। 15 साल के बाद एमसीडी से बीजेपी का राज खत्म हो गया। चुनाव नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। तो वहीं आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्कूल और स्वास्थ्य का मॉडल काम करता है, वो सबके साथ मिलकर काम करेंगे। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है, कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एमसीडी चुनाव के नतीजों को 2024 से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 में आप बनाम बीजेपी होगा। 15 साल से जहां पर भारतीय जनता पार्टी का राज था, वो किला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आज ध्वस्त किया है। और इसके साथ साथ दिल्ली की जनता ने एक बड़ा संदेश दिया है कि केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है, आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। दिल्ली की जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। 2024 की बात मैं कर रहा हूँ, क्या होने वाला है? 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी को अच्छी फाइट बीजेपी ने दी। उनके कई झूठे दावे आज झूठ साबित हुए हैं। चाहे उन्होंने कहा हो कि 20 सीटें बीजेपी की आएंगी, हम 230 जीत रहे हैं, वो भी झूठे साबित हुए। और जिस तरह नेक टू नेक फाइट हुई है, देखिए चुनाव है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने 15 साल के एमसीडी में सत्ता के बावजूद दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है। तो वहीं एमसीडी चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। कांग्रेस अपने प्रदर्शन पर पहले की तरह ही मंथन करने की बात कह रही है। हम ये कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट है कि हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और इसमें हम दूसरे को दोष देने से बेहतर है हम अपने अंदर, घर के अंदर झांकेंगे, क्या कमियां हमारे में रही और क्या मजबूरी है।
और एमसीडी चुनाव के नतीजे पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हेडक्वार्टर से जुड़ रही हैं दीपाली नंदा और बीजेपी हेडक्वार्टर से आलोक प्रियदर्शी। दीपाली, सबसे पहले आपके पास आते हुए नतीजों के बाद आपके दफ्तर का क्या कुछ माहौल है, बताइए और दिखाइए। तो बिल्कुल, अगर माहौल की बात करें तो सुबह से ही स्मिता हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम देख रहे थे जैसे ही शुरुआती रुझान आने सामने शुरू हुए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला और जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहा था वो पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहा था। अगर मैं बहुमत की बात करूँ तो आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुका है और ये बड़ी जीत आम आदमी पार्टी मान रही है, क्योंकि पिछले 1.5 दशक से एमसीडी में भाजपा का शासन रहा है और अब जब यूनिफाइड होकर दोबारा से चुनाव किए गए तो आम आदमी पार्टी ने एक बढ़िया जीत दर्ज की है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी संबोधन हुआ, जो हमने अपने दर्शकों को सुनाया भी, और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने हॉस्पिटल में सुधार किया है, शिक्षा का स्तर सुधारा है, उसी तरह से अब दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी बड़ा बदलाव लेकर आएगी। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, दिल्ली सरकार में 0 टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसी पॉलिसी को अब दिल्ली नगर निगम में भी लागू किया जाएगा। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है और खासतौर पर वो पार्षद जो जीत कर आ रहे हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंच रहे हैं और जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल ने भी उन सभी का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जितने भी दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ पर मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने भी जीत का जश्न मनाया। जी आलोक, इस वक्त आप बीजेपी हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। बीजेपी हार गई है लेकिन प्रदर्शन को ज्यादा खराब बीजेपी का नहीं कहा जाएगा। बीजेपी खेमे में क्या हलचल है और क्या कह रही है अब बीजेपी के नेता इस पर? बिल्कुल, बीजेपी ने एक तरह से कहें हार मार ली है और उन्होंने सारे उनके बड़े नेताओं ने भी कहा कि हम जो हार है उसको स्वीकार करते हैं। हालांकि ये हार हमारी काफ़ी एक तरह से कहें हमने काफ़ी कड़ी टक्कर दी है आम आदमी पार्टी को, और उसका नतीजा देखिए यहाँ पर दरवाजे जो हैं बीजेपी ऑफिस के बंद हो चुके हैं। इक्के दुक्के नेता अंदर हैं यहाँ पर और जो जीते हुए पार्षद हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं एक एक करके मिलने के लिए। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक बैठक होगी, सारे नेता मिलेंगे, मंथन करेंगे कि आखिर कहाँ कमी रह गई। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर चल रही है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि 15 साल से जो बीजेपी का अभेद्य किला था वो ध्वस्त तो कर दिया बीजेपी ने, लेकिन जो बुनियाद है अभी भी काफ़ी मजबूत दिख रही है और उस पर नई दीवार खड़ी करने के लिए जो बीजेपी के नेता हैं वो तैयार हैं। और उनका बार बार यही दावा है कि जो मेयर होगा वो हमारा ही होगा, क्योंकि मेयर बनाने के लिए वक्त है, 2-3 महीने का समय है, उसमें कई तरह की जोड़ तोड़ उलटफेर होने की पूरी गुंजाइश है। और इसी को देखते हुए बार बार यही बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी हो मेयर तो हमारा ही बनेगा। तो अब देखना होगा कि अंदर खाने क्या उलटफेर बीजेपी के नेता कर पाते हैं मेयर बनाने के लिए। हालांकि शिकस्त मिली है, ये बात बिल्कुल तय है और आम आदमी पार्टी ठीक ठाक पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर दिल्ली एमसीडी के चुनाव में काबिज हुई है। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, दीपाली आपका भी और आलोक आपका भी। आज चुनाव अड्डा में एमसीडी चुनाव के नतीजों का होगा सबसे सटीक विश्लेषण बड़े और विश्वसनीय पैनल के साथ। जरूर देखिए चुनाव अड्डा शाम 7:57 पर। तो वहीं गुजरात की सत्ता किसकी होगी उसका जवाब कल पूरे देश को मिलने वाला है। कल गुजरात विधानसभा चुनाव के 182 सीटों की मतगणना है। वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच होती है। वोटिंग होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया जाता है। अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे ही एक स्ट्रांग रूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। देखिए अभी गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, अब कुछ ही घंटों के बाद ये फैसला हो जाएगा। इस वक्त हम अहमदाबाद की एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज पर मौजूद है जहां पर मतगणना होने वाली है। आप देखिए कि पुलिस का कितना कड़ा बंदोबस्त है। यहां अंदर जाने के लिए सबको बाधित किया गया है। अगर किसी के पास स्पेशल आई कार्ड है तभी उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस बार 6 से 9% मतदान कम हुआ है 2017 के मुकाबले। तो ये किसका फायदा होगा और किसका नुकसान, ये सवाल अच्छे पॉलिटिकल पंडित भी अभी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ये पता चल जाएगा और सुबह 8 बजे से यहाँ से मत गिनती है वो स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर से जो वोटिंग हुआ है उनकी गिनती की जाएगी, बाद में सारे ईवीएम खोले जाएंगे। लेकिन क्या लगातार 27 साल बाद
बीजेपी वापस आएगी या इस बार होगा परिवर्तन, इसका जवाब कल दोपहर तक मिल जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे संसद सत्र की, जो आज से शुरू हो गया। संसद का आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। तो वहीं बीजेपी की कोशिश ये होगी कि वो मौजूदा सत्र में अपने 16 नए बिल को पास करा ले। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर घेरने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। एक बात जो पहले से तय मानी जा रही है वो ये कि हर बार की तरह इस बार भी संसद सत्र हंगामेदार ही रहेगा। हालांकि पीएम ने फिर भी सभी दलों से सहयोग का भरोसा जताया है। पीएम ने कहा कि इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास होगा। इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नए अवसर, उन सबको ध्यान में रख करके कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्यवृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे। और संसद के शीतकालीन सत्र पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैं लक्ष्मण रॉय जी, उनके पास। लक्ष्मण जी, किस तरीके का सत्र और आगे क्या कुछ रहने की उम्मीद, क्या डिटेल है इस वक्त आपके पास? देखिए, संसद सत्र की जब आज से शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री के स्पीच के बाद ऐसा लगा कि संसद में बड़े कामकाज होने की संभावना जग रही है, लेकिन संसद के शुरुआत में 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा मुलायम सिंह यादव समेत कुछ दिग्गज नेताओं के निधन के बाद। उसके बाद प्रधानमंत्री ने सदनों को संबोधित किया और एक मुद्दा बड़ा ही नया मुद्दा था जिसको उन्होंने उठाया और जोर देकर कहा कि जो युवा सांसद हैं उनसे जब वो मिलते हैं तो उनका कहना होता है कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, हमारी भागीदारी बहुत कम रहती है। तो प्रधानमंत्री ने इस बार दोनों सदनों से अपील की है कि इस बार जितने भी बचे हुए सत्र हैं चालू साल के, उसमें आप युवा सांसदों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए। इस बीच कुछ बिजनेस भी, कामकाज भी शुरू हुआ, जिसमें एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल को यहाँ पे सदन में पारित कराने के लिए चर्चा के लिए लाया गया। इसके तहत शिपिंग सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। दूसरा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गवर्नेंस में सुधार का बिल भी यहाँ पर पेश किया गया। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया कि पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं उसमें विपक्ष को दरकिनार किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये मुद्दा यहाँ पे उठा और मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने आज बैठक की प्रमुख विपक्षी दलों के साथ और वहाँ बैठक में ये रणनीति बनाई कैसे सरकार को महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, आर्थिक आरक्षण में कोटे के मुद्दे पर घेरा जाए। तो मुझे लगता है कि अगला कुछ दिन जो होगा संसद का सत्र, विपक्ष थोड़ा सा हंगामा यहाँ पे करेगा, लेकिन कल थोड़ा सा दिलचस्प हो सकता है क्योंकि आज एमसीडी चुनाव में जहाँ आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उसके बाद कल गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे में आने शुरू हो जाएंगे। तो कल मुझे लगता है कि इन्हीं राज्य विधानसभा चुनाव के गहमा-गहमी के बीच सदन रहेगा, उसके बाद कामकाज थोड़ा बहुत शुरू होता हुआ देखेंगे। तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।